Is it so? Okay, so today's topic is very interesting. Okay, you will not feel sleepy, and even if you feel sleepy, then आपकी नींद भाग जाएगी क्योंकि आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग वन है. ठीक है. What was the last topic that we have covered? Hello. Biased representation. Bias representation. No, I think we have started the addition and subtraction. Yes, I think in the last lecture we have completed subtraction one. Okay. So today we will be starting with the binary multiplication. Okay. Today we will be starting with the binary multiplication. Okay. Chalo. Let us begin with the session. Okay. So for multiplication of the table, okay, when your inputs are 0, 0, 0, 1, 1, 0 and 1, 1. At that time, 0, 0 is 0, 0, 1 is 0, 1, 0 is 0, and in multiplication only 1 into 1 is 1. Okay. So this is the multiplication table that you have to remember. Okay. Chalo. Now here we will solve one simple binary multiplication. Okay. Our today's topic is binary multiplication. ठीक है. चलो अभी हमारा जो ट्रेडिशनल अप्रोच है मल्टीप्लिकेशन का, फॉर एग्जांपल अगर मुझे मल्टीप्लाइड करना है 13 मल्टीप्लाइड बाय 11, ठीक है, अगर मुझे करना है 13 मल्टीप्लाइड बाय 11 तो मैं कैसे करूंगी? आइदर आई विल डायरेक्टली मल्टीप्लाई विद द 13 और आई विल मल्टीप्लाई विद द 1 डिजिट. ठीक है, चलो करते हैं. 3 into 1 3, 3 into 1 3, then 1 cross here, 1 into 1 1, 1 into 1 1. Okay, and then you add both the things. So 3 3, 3 plus 1 4. So your addition is 140. Sorry, your multiplication is 143. Okay, so let us now do the same binary multiplication using the binary values. ठीक है. So what will be the representation of binary 11? So it will be 1 0 1 1, 1 2 4 and 8. So 8 plus 2 10, 10 plus 1 11. Okay, into 13. So if I add 8, okay, instead of that 4 5 6 7. Okay, so अगर मुझे यहाँ पे 13 करना है तो 13 कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? 8 plus 4 plus 1. So 1 1 0 1. Am I correct? चलो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं. ओके, देखते हैं हमारा आंसर 143 आ रहा है या क्या आ रहा है. ओके, चलो 1 multiplied by 1 is 1, 1 multiplied by 1 is 1, 1 multiplied by 0 is 0, 1 1 multiplied by 1 is 1. 1 cross over here. Second, 0 multiplied by anything is 0. ठीक है. Third, 1 multiplied by again 1 is something 1 0 1 1. ठीक है. एंड एंड में फिर से ये 3 क्रॉस आएंगे और फिर से आएगा 1 1 0 एंड 1. ठीक है, चलो इसका सबका एडिशन करते हैं. So 1 is as it is here. This 1 plus 0 is 1. 0 plus 0 is 0. 0 plus 1 is 1. 1 plus 0 is 1. Okay. 1 plus 1 is 0. Carry 1. And 0 plus 1 is 1. 1 plus 0 is 1. 1 plus 0 is again 1. And 1 plus 1 is 0. Carry 1. 1 plus 1 is 0. Carry 1 and 0 plus 0 is 0 and this 1 plus 1 is again 0 and carry 1. ठीक है. So what is this number? Okay,
व्हाट इज दिस नंबर? ये आपका नंबर क्या हो गया? चलो ढूंढो, ये क्या नंबर है आपका? ये अगर मैं अभी कैरी भी नहीं कंसिडर करूं तो ये 8 बिट नंबर हो गया, ठीक है। तो क्या ये नंबर मेरा 143 है? करो आप लोग, देखो आपका नंबर 143 आ रहा है क्या? ट्राई करो ऑल ऑफ यू, कितना नंबर आता है वो? वेदर इट इज 140 और समथिंग एल्स, 143 आना चाहिए। ओके कितना आंसर आ रहा है? वन 143 आ रहा है आपका आंसर? सबका आ रहा है 143? Yes, ma'am. ओके आपने ठीक से चेक किया सबने? सबने चेक किया? कितने लोगों का आंसर यस आया? ओके ठीक है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट एक सम करते हैं, ठीक है। और एक सम करते हैं जिसमें आपको क्या करना है, -7 इंटू 5 करना है। तो आपका क्या आंसर आना चाहिए? -35, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे बाइनरी मल्टीप्लीकेशन करते हैं, -7 इंटू 5, ठीक है। तो -7 इज 8001, तो -8 एंड +1, ठीक है। ये हो गया 1001 इंटू 5, so 5 is 0101. Now you do the multiplication and tell me whether you are getting the -35 answer. वन जीरो वन जीरो वन। क्या आपका आंसर कितना बिट का आया? 6 बिट का? अजिंक्य आंसर कितने बिट का आना चाहिए? 4 इंटू 4, 8 बिट का आंसर आना चाहिए। वन जीरो वन। अजिंक्य चेक करो। जीरो जीरो वन जीरो। नहीं, आपका आंसर रॉन्ग है राधा।
हाँ ठीक है, ठीक है। आप सबका आंसर क्या आया? 00101101, यानी ये कितना नंबर हो गया आपका? नंबर कितना हो गया? कितना हो गया? ये नंबर कितना है? -35 है क्या? -35 है? नहीं है ना? गोकुल, आकाश नहीं है, श्रेया यस, दिस इज नॉट -35. That means there is something wrong in this multiplication. So what's wrong into it? पहले हमें ये ढूंढना पड़ेगा. What's wrong into this number? ठीक है, तो चलो पहले इस नंबर का जो भी कुछ गलत हुआ है पहले उसको सॉर्ट आउट करते हैं. ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है? एक मेथड अडॉप्ट करना है. ठीक है, उस मेथड में ये -35 आंसर आने के लिए आप ये जो सॉल्व करते हैं 7 into 5 या फिर 12 into फॉर एग्जाम्पल 12. ठीक है, तो यहाँ पे 12 2 जा 24, 12 प्लस 12 1 जा 12 प्लस 2 14 एंड ये 12 1 2. ठीक है, तो ये आपका आ गया 6 एंड 264 आ गया. ठीक है, तो ये जो आपका बीच का जो एडिशन है, ये जो आपकी प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन की, फॉर दिस प्रोसेस आई हैव टू फाइंड आउट एट विच प्लेस एग्जैक्टली ये निगेटिव नंबर आता है. कहाँ पे आता है निगेटिव नंबर? दैट आई हैव टू फाइंड आउट. एंड फॉर दैट पर्पस व्हाट आई हैव टू डू? ओके, फॉर दैट पर्पस व्हाट आई हैव टू डू, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने जो भी कुछ यहाँ पे ये आपका आ गया, यहाँ पे क्रॉस आया. ठीक है, यहाँ पे 2 क्रॉस आए, फिर यहाँ पे 3 क्रॉस आए, फिर यहाँ पे आपने कुछ एडिशन किया और कुछ आंसर आपको यहाँ पे आ गया है. ठीक है, तो इन चारों में से ये -35 जब आएगा तो यहाँ पे ये जो कुछ नंबर है, यहाँ पे कुछ नंबर होगा, ये कुछ नंबर होगा, ये कुछ नंबर होगा, ये कुछ नंबर होगा, फिर ये सारे नंबर हम लोग ऐड करेंगे तब मुझे जाके कहीं ये आंसर मिलने वाला है. तो ये जो नंबर है, तो -35 आने के लिए एग्जैक्टली किस नंबर पे निगेटिव साइन आता है वो मुझे चेक करना है. उसके लिए एक मेथोडोलॉजी यूज करते हैं. वो क्या मेथोडोलॉजी है वो मैं अभी आपको बताती हूँ. ठीक है, वो मेथोडोलॉजी क्या है जिससे मुझे पता चले कि मुझे कहाँ पे माइनस करना है, कहाँ पे प्लस करना है. क्योंकि जो अभी आपने सॉल्व किया वो आपका आंसर आया -45. अगर आपने चेक किया होगा, सॉरी +45, आपका आंसर आया है +45. तो उसके लिए आपको क्या करना है? m इंटू क्यू करना है. m इज द मल्टीप्लायर, multiplicand, sorry. Okay, and q is nothing but the multiplier. Okay, multiplier. तो आपका m क्या है? ये आपका मल्टीप्लिकेंड है और ये आपका मल्टीप्लायर है. तो चलो 1 0 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखती हूँ मैं नीचे. ठीक है, m इंटू क्यू. ठीक है, तो m इज 1001 इंटू क्यू इज 0101. ठीक है, फिर ये यहाँ पे मैं लिख रही हूँ -8 +0 +0 +1 इंटू, ठीक है, 0 +4 +0 +1. ये जो हमने 1 2 4 8 किया है, मैंने ये सिर्फ नंबर यहाँ पे ऐड किए. अभी ये जो पहला नंबर है तो इसको यहाँ पे मैं -7 कर रही हूँ. -7 मल्टीप्लाइड बाय 0 +4 +0 +1. फिर यहाँ पे नीचे जाके इस 7 से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए. सो -7 इंटू 0 प्लस -7 इंटू 4 प्लस -7 इंटू 0 प्लस -7 इंटू 1. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे मुझे क्या मिला? 0 प्लस ऑफ -28, ओके, प्लस 0 प्लस ऑफ -7. ठीक है,
प्लस माइनस 7। समझ में आ गया? ठीक है, अभी मैं फिर से मल्टीप्लिकेशन करूंगी। ठीक है, अभी मैं करूंगी फिर से मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये जो जहां पे भी माइनस है, ठीक है, जहां पे माइनस साइन आता है, ओके, वहां पे आपको 1 से पैडिंग करना है, और जहां पे आपका माइनस साइन नहीं आता है वहां पे आपको 0 से पैडिंग करना है। अभी वो पैडिंग कहाँ पे करना है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे करते हैं 1 0 0 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 1 0 1। ठीक है, अभी मैं ये सॉल्व कर लेती हूँ पहले। 1 0 0 1 0 0 0 0, ये 1 से मैं फिर से मल्टीप्लाइड करूंगी तो 1 0 0 1, फिर से यहाँ पे 3 क्रॉस और 0 0 0 0। ठीक है, अभी यहाँ पे एडिशन करने से पहले हमने ये जो किया है 0 माइनस 28 0 माइनस 7, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगी -7, यहाँ पे लिखूंगी 0, यहाँ पे लिखूंगी -28, यहाँ पे लिखूंगी 0। ठीक है, यानी ये जो टर्म्स है, ठीक है, अभी आप ये देखिए 8 -8 प्लस 1 -7, ऑल 0 0 1 0 0 1 इज, यहाँ पे मैं जब ये दो टर्म ऐड करूंगी, एक टर्म यहाँ पे ऐड करूंगी, तो ये हो जाएगा -28 और ये फिर से हो गया 0। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, जहां पे भी निगेटिव टर्म है वहां पे उतने मुझे, अभी ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं 8 बिट कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं एक 1 और एक 0 ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, एक 0 में ऐड कर लेती हूँ, यहाँ पे मैं 8 बिट करने के लिए एक 0 ऐड किया है, तो ये 4 0 एंड ये 4। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए -28 है, यानी यहाँ पे ये 1 है, निगेटिव है, इसलिए मैं यहाँ पे 2 1 ऐड करूंगी। ये देखिए मैं यहाँ से पैडिंग शुरू कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ से ऊपर मुझे पैडिंग करना है। ठीक है, यहाँ पे 0 है, तो जहां पे 0 है वहां पे 0 ऐड करो, तो यहाँ पे 3 0 ऐड करो जिससे ये नंबर 8 बिट हो जाएगा। यहाँ पे ये 1 है, माइनस है, तो यहाँ पे हम 4 1 ऐड करेंगे। ठीक है, अभी इसका एडिशन करो, तो इसका एडिशन आएगा यहाँ पे 1, फिर ये यहाँ पे आएगा 0, फिर ये यहाँ पे आएगा 1, फिर 1 0 0 0 0 1, तो यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, ये हो गया हमारा एक 4 बिट। दूसरा फिर से यहाँ पे आएगा ये 1। ठीक है, ये 1 आ गया, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 0 0 एंड 1। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आ गया 1 का 0, यहाँ पे फिर से सेम है तो 1 आएगा, यहाँ पे 1, और ये मेरा कैरी जनरेट हो गया 1। तो यहाँ पे देखिए मैंने एडिशन किया। ठीक है, एडिशन करने के बाद यहाँ पे मेरा कैरी जनरेट हो रहा है, ये जो नंबर है उसका कैरी जनरेट हो गया है। अगर कैरी जनरेट हुआ, ठीक है, अगर कैरी जनरेट हुआ तो फाइंड आउट द टूथ कॉम्प्लीमेंट फॉर दिस नंबर। ठीक है, फाइंड आउट द टूथ कॉम्प्लीमेंट। तो टूथ कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, 1 1 0 1 1 1 0 1, तो इसका टूथ कॉम्प्लीमेंट 0 0 1 0 0 0 1 0, उसमें 1 ऐड करो, फिर कितना आएगा 1 1 0 0 0 1 0 0। ठीक है, और ये नंबर हमने टूथ कॉम्प्लीमेंट किया है, यानी इसका माइनस साइन आएगा सबसे पहले, और ये देखिए ये 1, ये 2, ये 1 2 4 8 16 32, so 32 plus 2 is 34 and 34 plus 1 is 35, तो आ गया आपका आंसर -35। समझ में आ गया, समझ में आ गया एवरीवन? ओके, कुछ प्रॉब्लम है, फिर से रिपीट करना है? मैम लास्ट तक एक बार वापस। कौन सा?
लास्ट स्टेप, टू कॉम्प्लीमेंट और ये देखिए, ये आंसर आपको मिल गया एडिशन के बाद, ये आंसर मिल गया आपको, ठीक यस से मैम, दिखाई दे रहा है ना? यस मैम। हाँ, तो ये जो आंसर आ गया उसका रेगुलर टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो यहाँ पे, ये देखिए, ये वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला और उसमें वन ऐड किया, तो मेरा ये टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया। और अगर एडिशन में कैरी जनरेट होता है, तो कैरी अगर आ गया तो फिर हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, और किसी भी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकाला तो उसका बाय डिफॉल्ट साइन निगेटिव हो जाता है। तो ये आ गया आपका 0 0 1 0 0 0 1 1, तो ये तो 35 हो गया, और ये इसका ये टूज कॉम्प्लीमेंट निकाला इसलिए माइनस साइन, तो आपका आंसर आ गया -7, -7 into 5 is nothing but -35. Okay, all of you? मैम, हाँ, मैम, if we take -7's 2's complement and then multiply, I'm getting the same answer. क्या बोल रहे हैं? फिर से बोलो, फिर Ma'am, से if we बोलो। take -7's 2's complement and then we multiply it directly, then नहीं we are नहीं, getting. -7 का टूज कॉम्प्लीमेंट क्यों लेना है? नहीं लेना है आपको। आपको आंसर का टूज कॉम्प्लीमेंट जब हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं तब आपको पहले सेकंड नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है। यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को सिर्फ -7 रिप्रेजेंट करना है, तो 1001 तो बाय डिफॉल्ट -7 हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे ये साइन बिट है, ये 1001 इट्स अ साइन बिट, तो ये यहाँ पे -8 +0 +1, तो -8 +1 -7 हो गया ना। यहाँ पे देखिए, ये -7 हो गया यहाँ पे। तो अगर मुझे इतने सिंपल तरीके से -7 मिल रहा है तो मैं टूज कॉम्प्लीमेंट क्यों करूंगी? है कि नहीं? और अगर मुझे टूज कॉम्प्लीमेंट करना है, मुझे पता नहीं -7 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं उसमें क्या करूंगी, 7 लूंगी। 7 में कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ? 1 2 4 8, तो कैसे रिप्रेजेंट करना है? 7 0 1 1 1, इसका वंस निकालो, 1 0 0 0, इसमें 1 ऐड करो, तो कितना हो गया? 1 0 0 1, तो ये तो मुझे -7 मिल गया ना फिर। -7, -7 का अगर निगेटिव नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो वो तो +7 हो जाएगा ना, है ना? एक काम करो आप, ठीक है, ये डिफिकल्टीज अगर आपको सॉल्व करनी है, ये 1001 है, ठीक है, अभी आपको 1001 का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो, इसका कितना आएगा? 0110, उसमें 1 ऐड करो, 0111, यानी -7 का टूज कॉम्प्लीमेंट निकाला, ठीक है, तो +7 आएगा, +7 का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो, -7, ये तो साइकिल चलता ही रहेगा फिर। आर यू गेटिंग why we have to not draw two's complement over there? Yes, ma'am. Yes, okay. Anybody else? Yes, ma'am. Ma'am, किसी को कुछ पूछना है? हाँ बोलो। मैम, आपने एक एग्जांपल दिया था ना 12 into 12 का। हाँ, मैम, तो उसका आंसर 264 कैसे आया था? लाइक 12
Yes, hello. Hello. Hello, am I audible properly? Yes, ma'am. Okay. Sorry, there is actually heavy rain over here. So because of that, power cut is there. So I have joined from the my mobile hotspot now. Okay. Chalo. So who is asking me the question 12 into 12? Yes, ma'am. Yes. I was asking. Yes, please. So 12 to 12, how did we get the answer 264? It's a 12 into 12. Might be there is some. What I wanted to tell you is it's only the multiplication. Okay. So might be Okay. there was some mistake in the multiplication. What Okay. is 12 into 12? 144. 144, na? Yes, ma'am. Got it. Okay. Got it? Okay. Whatever is the 12 into 12 answer, that you have to write. I don't concern about what is the answer. I'm not concerned about that. I'm concerned about whatever steps we are following over here. Okay. So what is the important to mark this -7 and -28 over here? Okay. What is important is -7 and -28 to mark. Kyuki the number, when the number is negative, at that time we have to pad with the 1, else we have to pad with the 0. ठीक है. तो जहां पे भी ये 1 है वहां पे 1 से पैड करो. अगर नंबर निगेटिव है लेकिन वहां पे 0 है तो 0 से पैड करो. सो पैडिंग इज इंपॉर्टेंट. यहाँ पे मुझे आपको क्या बताना है? पैडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. पैडिंग अगर आपको आ गई तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा. ठीक है. सो दैट्स ऑल. चलो अभी एक वन मोर सम सॉल्व करते हैं, फिर इससे आपके अगर कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे तो वो आपके क्लियर हो जाएंगे. ठीक है. चलो सॉल्व इट. लेट अस से 0111 into 0011. Okay. Is it visible? 0111 into 0011. Okay. Solve it now. क्या आंसर आया आपका? 00001001. Are you getting the answer? What is required? Akash, are you getting the required answer? The number is 7 into 3. Okay. So number 7 into 3. So you are getting the answer? Yes. Okay. 001. What is the answer? 10101. Okay. So this is your answer. Okay. So 1, 2, 4, 8, 16. So 16 plus 1 is 21. Okay. Now you try one more. Okay. So try one more. So your next sum is 1001 into 0011. Now you do.
अच्छा, और एक बात बतानी थी, हमारी सीओ की एक क्लास मिस हो गई थी, वो ड्यू टू एग्जामिनेशन। ठीक है, तो हम लोग इस सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास रख रहे हैं। टाइमिंग मैं आपको मैसेज करूंगी। ठीक है, इस सैटरडे को हम लोग एक्स्ट्रा क्लास रख रहे हैं, विच विल बी कंपेंसेटिंग द व्हाट आई कैन से, विच विल बी कंपेंसेटिंग द सेशन, कोई भी, क्योंकि मैं एक भी क्लास मिस नहीं करना चाहती। आंसर इज 000010101। वेदर यू आर गेटिंग द करेक्ट आंसर? ओके, सी गाइस, अभी यहाँ पे हमने जितने भी मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किए हैं उससे हमें एक बात समझ में आती है, ठीक है, कि ये मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंट प्रोसीजर है। जो हम लोग, अगर यहाँ पे ये 4 ही डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है, बट अगर समझ लो कोई नंबर ऐसा रहा 10010011 मल्टीप्लाइड बाय 1001 एंड 1001, अगर ऐसा कोई मल्टीप्लिकेशन रहा, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हाँ, तो इसका आंसर तो आएगा 16 बिट का, करेक्ट है। और अगर 16 बिट का मल्टीप्लिकेशन रहा 16 इंटू 16, तो उसका आंसर आएगा 32 बिट। अगर 32 बिट और 32 बिट का रहा तो उसका आंसर आएगा 64 बिट। तो क्या हम लोग ये मल्टीप्लिकेशन ही करते बैठेंगे? No. So for that purpose, there has to be some approach. Okay, there has to be some approach by which we can easily able to do the multiplication with the minimum number of computations. Okay, with the minimum number of computations. So for that purpose, there is one solution. Okay, there is one solution to it. And what is the solution then? The solution is, वन मिनट, हाँ, टेढ़ा हो गया है। यस, so solution is Booth's algorithm. Okay, solution is Booth's algorithm. So what is this Booth's algorithm? This Booth's algorithm is actually the particular algorithm which is used to speed up the calculations. Okay, this is the straightforward approach which has been used. Okay, this is the straightforward approach which has been used, and uh, it is used to speed up the particular operation. अभी उसका एक फ्लो चार्ट है। ओके, हम उसका फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे, और जैसे ही फ्लो चार्ट है उसी तरह से हम लोग एग्जाम में उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे फ्लो चार्ट है वैसे ही सॉल्व करेंगे। अभी आप लोग क्या करो, मेरे साथ में आप फ्लो चार्ट लिखो। ठीक है, मेरे साथ में आप फ्लो चार्ट लिखना, ताकि फिर बाद में टाइम ना जाए। ठीक है, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर, स्टार्ट। ठीक है, सबसे इनिशियल स्टेज जो है स्टार्ट का, ठीक है, उसमें हमें क्या करना है, a इज इक्वल टू 0 को इनिशियलाइज करना है, a यानी एक्यूमुलेटर। ठीक है, एंड q ऑफ 1 माइनस 1 एक टर्म है, वो मैं बताऊंगी आपको क्या होता है वो टर्म, उसको भी 0 इनिशियलाइज करना है। ठीक है, फिर m इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेंट जो है, ठीक है, m इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेंट, q इज इक्वल टू मल्टीप्लायर क्या है उसको देखना है, और काउंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ n हमें डिसाइड करना है। नाउ व्हाट इज दिस n? अगर मेरा नंबर है 1001, तो n इज इक्वल टू 4, यानी 4 साइकिल्स लगेंगे। अगर मेरा नंबर है 010101, तो n इज इक्वल टू 6। ठीक है, ऐसा उसका क्या बोलते हैं, उसका गणित रहता है। अभी इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये है, इसमें मुझे देखना है Q0 और Q ऑफ -1। ठीक है, मुझे देखना है Q0 एंड Q ऑफ -1। इसमें 3 ये रहते हैं। ठीक है, आइदर आपका आंसर आएगा 01, आपका आंसर आएगा 10, या फिर आपका आंसर आएगा 11
और 0 0। तो अगर आपका आंसर आया 0 1, तो आपको क्या करना है, ए यानी एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर इज इक्वल टू कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर प्लस एम करना है। तो एम इज द मल्टीप्लिकेंट, ठीक है। एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स ए सी इज इक्वल टू ए सी प्लस एम। अगर आपके कंटेंट्स अगर आपका Q0 और Q ऑफ -1 10 आता है, तो आपको एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स माइनस करने हैं, ठीक है, माइनस करने। और अगर आपकी वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे जो लिखना है, यहाँ पे नीचे, ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे नीचे मुझे क्या करना है, ये ब्लॉक मुझे यहाँ पे कनेक्ट करना है, ये ब्लॉक मुझे यहाँ पे कनेक्ट करना है, और यहाँ पे मुझे करना है अरिथमेटिक राइट शिफ्ट, ठीक है। मुझे करना है अरिथमेटिक राइट शिफ्ट। उसमें शिफ्ट में मुझे ए क्यू और क्यू ऑफ -1 की वैल्यू क्या है वो देखनी है, और काउंट का वैल्यू मुझे 1 से डिक्रीमेंट करना है, काउंट -1, ठीक है। फिर ये करने के बाद अगर मेरा काउंट का वैल्यू, ये मुझे डायमंड है यहाँ पे, ठीक है, इफ काउंट का वैल्यू 0 है, तो आपको यहाँ पे प्रोसेस एंड करनी है, ठीक है। लेकिन अगर काउंट का वैल्यू 0 नहीं है, तो आपको यहाँ से फिर से उसको स्टार्ट करना है, यहाँ से। अगर काउंट का वैल्यू नहीं है 0 और काउंट बाकी, यानी आप सपोज लो आप n इज इक्वल टू 1 पे है और आपका 2 3 4 साइकिल बाकी है, तो आप फिर से यहाँ से स्टार्ट करोगे उसको, इस पॉइंट से, यहाँ से इस पॉइंट से उसको स्टार्ट करोगे, फिर से उसके Q0 Q ऑफ -1 के वैल्यू चेक करोगे। अगर वैल्यू 1 0 है तो माइनस करोगे, 0 1 है तो प्लस करोगे, और दोनों में से कुछ भी नहीं है, 1 1 है या 0 0 है, तो आप अरिथमेटिक राइट शिफ्ट करोगे, ठीक है। ये आपका एल्गोरिदम हो गया, ठीक है। अभी मैं पहले आपको सिंपल राइट शिफ्ट एंड अरिथमेटिक राइट शिफ्ट का डिफरेंस बताती हूँ, ठीक है। अभी ये देखिए, सपोज ये आपका नंबर है 0 0 1 1, ठीक है, ये आपका नंबर है 0 0 1 1, ठीक है। अभी 0 0 1 1 में अगर मुझे राइट शिफ्ट करना है, तो इस बिट को मुझे इग्नोर करना है अभी के लिए, ठीक है। फिर ये बिट मेरे यहाँ पे आएगा, ये बिट मेरा इस पोजीशन पे आएगा, क्योंकि मैं राइट शिफ्ट कर रही हूँ, ये बिट मेरा इस पोजीशन पे आएगा, ठीक है। और ये जो 1 है, ठीक है, ये 1 मेरा यहाँ पे आएगा, यानी ये हो गया मेरा सिंपल राइट शिफ्ट, ठीक है। ये हो गया मेरा सिंपल राइट शिफ्ट, ठीक है, ये हो गया सिंपल राइट शिफ्ट। लेकिन मुझे अभी क्या करना है, मुझे अरिथमेटिक राइट शिफ्ट करना है, ठीक है। उसके लिए व्हाट आई विल डू, आई विल टेक सेम नंबर नाउ 0 0 1 1। तो मुझे क्या करना है, अरिथमेटिक में ये 1 यहाँ पे लिखना है, ये 0 यहाँ पे लिखना है, इस 0 को यहाँ पे लिखना है, और ये जो 1 है, ये जो 0 है, इसको फिर से मुझे यही रेप्लिकेट करना है। यानी मेरा आंसर क्या आया 0 0 0 1, और यहाँ पे सिंपल राइट शिफ्ट में क्या आया मेरा आंसर 1 0 0 1, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द arithmetic right shift and simple right shift. Okay, are you getting all of you? अभी तक जितना पढ़ाया है उसमें कुछ प्रॉब्लम है? मैम could you repeat किसी को the कुछ पूछना है? count part? Pardon? The n count part. n, अगर आपका ये 4 बिट नंबर है तो n 4 है, अगर आपका 6 बिट नंबर है तो n 6 है, ठीक है। Yes मैम, so वो 6 से चालू होकर फिर 6 5 4 3 ऐसे डिक्रीमेंट होगा ना? नहीं, वो मैं आपको बताऊंगी बाद में, जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना। तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, अगर आपका n इज इक्वल टू 6 है तो 6 साइकिल परफॉर्म करेंगे। ये जो पूरा आपका लूप है वो 6 टाइम परफॉर्म होगा, और वो उल्टा नहीं परफॉर्म होगा, वो सीधा ही परफॉर्म होगा 1 2 3 4 5 6 लाइकवाइज, ठीक है।
अगर आपका n इज इक्वल टू 2 है, सिर्फ 0 1 नंबर है, तो आपका साइकिल 2 टाइम्स परफॉर्म होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कैसे है, सिर्फ साइकिल रिपीट होती है, आपका मल्टीप्लीकेशन रिपीट नहीं होता। ठीक है, यानी आप ये मल्टीप्लीकेशन का एक तरीका है जो बुत बुत नाम के एक साइंटिस्ट ने इन्वेस्ट किया था। वैसे मैं एक बात बता दूं, कल मैंने सीओ के नोट्स यूनिट नंबर 2 के अपलोड किए हैं वीओएलपी पे। ठीक है, सो आप लोग एक बार वो चेक कर लो। मैंने नोट्स यूज नहीं किए हैं पीपीटी, बट फिर भी आपके रेफरेंस के लिए मैंने पीपीटी दिए हुए हैं। एक्चुअली व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज, जब मैं क्लास में यूनिट 2 पढ़ा रही हूँ, तो एट द सेम टाइम यू मस्ट बी अवेलेबल विद द पेन एंड पेपर, पेन एंड बुक के साथ। तो वॉट एवर आई एम टेलिंग यू इन द क्लास, if you are writing at the same time along with me, if you are understanding and writing, then at that point, according to me, there is no need to go through the ppts. ठीक है, just to solve the examples you can always refer to the ppt, but अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं, बट ओनली द कंडीशन इज यू मस्ट बी प्रेजेंट विद द पेन and the notebook to solve the example. अगर आपने यूनिट नंबर 2 सिर्फ थेरोटिकली पढ़ा और कुछ सॉल्व नहीं किया, तो यू विल गेट द 0 मार्क्स। ठीक है, क्योंकि समझ लो अभी इसके ऊपर भी मैं जब सी कंडक्ट करूंगी, तो मैं सी में क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पेन एंड पेपर लगेगा। ठीक है, जैसे समझ लो वहां पे मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव तो मैं पूछूंगी नहीं, और एक दो पूछे तो फिर एक दो ही पूछूंगी, ज्यादा तो 10 मार्क्स का सब्जेक्टिव ही होगा। उसमें आपको ये टूज कॉम्प्लीमेंट, बुथ्स एल्गोरिदम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही सम होने वाले, तो फिर तब वहां पे कंफ्यूजन मत करना। ठीक है, सो बेटर टू अवॉइड द कंफ्यूजन, यू मस्ट बी प्रेजेंट विद द पेन एंड नोटबुक, सो दैट यू विल प्रैक्टिस दैट सम्स ओवर हियर, एंड देन आप वहां पे उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अभी इसका ये जो फ्लो चार्ट है, आप इसको ठीक से देख लो, ये बुक में भी अवेलेबल है, मेरे पीपीटीज में भी अवेलेबल है, मैंने वहां पे सब कुछ लिखा हुआ है। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट मीन्स इन टुमारोज लेक्चर, टुमारो आई थिंक वी आर हैविंग द फर्स्ट लेक्चर एट 10 o'clock. So at 10, be present with this algorithm, and we will be solving actual example based on this Booth's algorithm. This Booth's algorithm will be asked in the examination for minimum 4 to maximum 8 marks. ठीक है, 6 मार्क्स 8 मार्क्स, अगर ज्यादा साइकिल रहा तो 8 मार्क्स का भी हो सकता है, अगर कम साइकिल रहा तो 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछ, डिजिट्स का रहा तो 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बेस्ड ऑन द नंबर, okay, based on the n, the marks may get vary. So minimum marks 2, maximum marks 8। बुथ्स एल्गोरिदम का मल्टीप्लिकेशन, बुथ्स एल्गोरिदम का डिवीजन हमेशा हमेशा पूछते ही है, ये क्वेश्चन कभी भी स्किप नहीं होता। ठीक है, सो मार्क दिस पॉइंट एज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, और आपको वहां पे मल्टीप्लिकेशन पूछा है यूजिंग बुथ्स, और अभी हमने जो इससे पहले जो सम सॉल्व किए, अगर आप उस मेथड से सॉल्व करोगे, इवन दो योर आंसर इज करेक्ट, बट यू विल गेट द 0 मार्क्स, बिकॉज इंस्ट्रक्शन इज टू सॉल्व द मल्टीप्लीकेशन विद बुथ्स एल्गोरिदम। तो जो जहां पे जो पूछा है आपको वहीं पे वही आंसर करना है। ठीक है, सो क्योंकि ये एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए इट विल टेक 10 minutes, पहला एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए, तो अभी तो वो होगा नहीं, इसके वजह से हम लोग वी विल कैरी इट आउट इन द नेक्स्ट लेक्चर इन टुमारो मॉर्निंग 10 o'clock. So okay, so I hope you are clear with the today's session, and if you have any difficulties you can go, or otherwise rest of you people can mark your attendance and can leave the class. Thank you so much. Ma'am, हाँ, yes. I mean, Booth's algorithm, the n like starts from 1, then goes to 2, then 3 and 4, right? Pardon, I'm not getting your question.
I mean, Booth's algorithm, if they have like say 4 digits of number, so then n increments from 1 to 3 and then to 4, right? Yes, yes.